السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے یہاں پر، پہلا سوال ہے 4835۔ اس کو ہمیں تہدار فیتے کی وجہ میں جیسا دیا ہے اس کی مدد سے ہم کو لکھنا ہے۔ تب یہ 4835 ہم یہاں لکھ لیں گے 4835۔ اب اس کو تہدار میں لکھنا ہے، یعنی سب سے پہلے یہ 4 آئے گا تو یہ 4، اس کا مطلب اس کے آگے کتنے ہیں ہندسے، 3 ہندسے ہے تو ہم لکھیں گے 3 صفر، اس کے بعد جمع دوسرا عدد کیا ہے 8، 8 کے بعد کتنے ہندسے ہیں تو 2 ہے تو یہاں لکھیں گے صفر، اس کے بعد جمع، پھر یہاں پہ کتنا ہے 3 تو 3 لکھیں گے، 3 کے بعد کتنا عدد ہے 1 تو صفر لگائیں گے، پھر جمع اور 5 کا 5۔ اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر ہماری رقم بن گئی ہے فیتے دار کی طرح، جیسے نا کہ 4 تو یہاں پہ 4000، 8 تو یہاں پہ 800، 3 تو یہاں پہ 30 اور 5 تو یہاں پہ 5۔ اس طریقے سے ہمارا پہلا جواب ہو گیا۔ اب فیتا مطلب کیا، یہاں پر جو ہے ہم لوگ ایک فیتا مطلب ایک چھوٹا سا ٹیپ کی طرح بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کریں گے، کتنی رقم ہے 4 ہے تو 1 رقم، 2 رقم، 3 رقم، اوکے۔ اب اس میں یہ 4 جو ہے 4000 یہاں پہ ایسے لکھ دیں گے ہم 4000، 4 صفر صفر صفر، اس کے بعد کیا ہے 800 تو لکھیں گے 800، اس کے بعد کیا ہے 30 تو لکھ دیں گے 30، اس کے بعد کیا ہے 5 تو یہاں لکھ دیں گے 5۔ اب اس کو کیا کریں گے موڑ دیں گے، ٹھیک ہے، تہ بنا دیں گے۔ تہ بنائیں گے تو یہ رقم کیسے لکھیں گے، یہ ایسا ہم بنائیں گے کہ یہ 3 صفر ہم کو دکھیں گے نہیں، یہ 800 کو 4000 پہ اس طرح سے رکھیں گے کہ صرف 4 دکھے گا، یہ 3 صفر نہیں دکھیں گے۔ پھر 800 کو ایسا رکھیں گے، پھر 800 کے اوپر 30 کو ایسا رکھیں گے کہ 800 کے 2 صفر نہیں دکھیں گے، 30 دکھے گا۔ پھر 30 کے اوپر 5 ایسا رکھنا گیا، 3 دکھیں گے لیکن صفر نہیں دکھیں گا، 5۔ تو اس طرح سے جب اس کو ہم لوگ طے کر کے رکھیں گے تو یہ ایسا دکھے گا، اور جب ہم اس کو کھول دیں گے تو کھولنے کے بعد جو ہے یہ ہم کو اس طریقے سے دکھا دے گا 4830 اور 5 یعنی 4835۔ اس طریقے سے ہم کو جواب دکھا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں فیتا۔ تو ابھی سارے جواب ہم کو کیسے کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ پہلا سوال تھا، اس کے بعد دوسرا سوال دیا ہے، دوسرا سوال کیا دیا ہے 1999، ٹھیک ہے، 1999۔ اس کو بھی کیسا کرنا ہے، فیتے میں جیسا دیا ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ 1 کو ایسے لکھ لیں گے یہاں پہ 1، اس کے بعد 3 ہندسے ہے تو ہم لکھیں گے 3 صفر، پھر جمع، اس کے بعد کیا دیا ہے 9 تو ہم لکھیں گے 9، اس کے بعد کتنے ہندسے ہیں 2 ہندسے ہیں تو ہم لکھیں گے 2، پھر جمع کریں گے، پھر اس کے بعد واپس سے کیا دیا 9، اس کے بعد کتنا ہندسہ ہے 1 ہندسہ ہے تو لکھیں گے 1 صفر، پھر جمع، اس کے بعد کیا دیا 9 تو 9 کو ایسے لکھیں گے 9، اس کے بعد کوئی بھی ہندسہ نہیں ہے تو ہم کیا کر دیں گے وہاں پر 9 کا 9 لکھ کے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمارا دوسرا جواب ہو گیا۔ پہلا جواب ہم نے یہاں پر دکھا دیے، یہ پہلا جواب ہے، اور یہ ہے دوسرا جواب۔ اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایسے ہی تیسرا سوال بھی دیا ہوا ہے، تو تیسرا سوال بھی ہم لوگ یہاں کر لیتے ہیں۔ تیسرا سوال دیا ہے، کیا دیا ہے 4 4 4 4۔ اب اس کو بھی ہم کو کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر یہ 4 ہے تو ہم یہاں 4 لکھ دیں گے، اس کے آگے کتنے ہندسے 3 ہندسے ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 3 صفر، پھر جمع کی علامت لگائیں گے، پھر یہاں پر کیا ہے اگلا پھر سے 4 ہے تو ہم اس کو پھر 4 لکھیں گے، اس کے آگے کتنے ہے ہندسے تو اس کے آگے 2 ہندسے ہے تو 2 صفر لگا دیں گے، پھر جمع کریں گے، پھر اگلا کیا ہے تو پھر اگلا واپس سے 4 ہے تو 4 لکھیں گے، اس کے بعد کتنے ہندسے 1 ہندسہ ہے تو جمع لکھ دیں گے، جمع کر دیں گے، اس کے بعد آخر میں پھر 4 ہے تو اس 4 کو ویسے ہی اتار دیں گے۔ اب اس کے آگے کوئی بھی ہندسہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کے آگے کچھ نہیں لکھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح سے ہماری تیسرے کا بھی جواب ہمارا یہ آ گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے باقی کے 2 سوال اور دیے ہیں، 9100، 9162 اور اس کے بعد دیا 6027۔ یہ 2 سوال دیا ہے تو یہ 2 سوال آپ کو کرنے ہیں، کیونکہ میں ابھی بڑھوں گا اگلی ہدایت کی طرف۔ اگلی ہدایت کیا ہے تو ہم اگلی ہدایت میں جو سوال دیے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اگلی ہدایت ہم لکھتے ہیں یہاں پر۔ اگلی ہدایت کیا ہے، درج ذیل
अददों को तौसी सूरत में तहवील कीजिए, तहवील करके लिखिए, चलो करके लिखिए, ये हिदायत है। पहला जो है फीतेदार, तो हमको पूरा फीता बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसमें रकम लिखना पड़ेगा, बाद में इसमें सिफर लगाना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटी के तौर पे हम लोग क्लास में बच्चों से करवा सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। इससे हम करेंगे तो बच्चों को हर एक की मकामी कीमत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन अभी एक्सरसाइज में ये वाला हम तुमको बता रहे। इसमें क्या दिया है, हिदायत ये दे दी है कि दर्ज झेल अददों को तौसी सूरत में तहवील करके लिखिए। और उसके बाद यहाँ पर पहला सवाल दिया है 4 4 7 2, ये पहला सवाल दिया है और उसके आगे बराबर की अलामत लगा के एक बड़ी सी लाइन खींच दिया है कि आप इसको करो। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको तौसी सूरत में वही तरीका अपनाएंगे। 4 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, उसके बाद 3 अदद है तो हम लिखेंगे 3 सिफर, उसके बाद फिर जमा की अलामत लगाएंगे, फिर से 4 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 अदद है तो 2 सिफर लगा देंगे, फिर जमा की अलामत लगाएंगे, उसके बाद क्या है 7 तो 7 लिखेंगे और उसके बाद एक ही अदद है तो हम सिफर लिखेंगे, फिर जमा की अलामत लगाएंगे और आखिर में क्या है 3, ये 2 है लिखा तो हम लिखेंगे 2। ये हो गया हमारा पहले का जवाब, एकदम सिंपल। अब दूसरा सवाल भी देख लो। दूसरे सवाल में क्या दिया है, 8 सिफर 9 2 बराबर की अलामत। अब यहाँ से 8 लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8 और इसके आगे 3 अदद है तो हम लगाएंगे 3 सिफर, फिर जमा की अलामत, फिर क्या लिखेंगे सिफर, तो यहाँ पर सिफर लिखेंगे, उसके बाद 2 अदद है तो और 2 सिफर लगा देंगे। अब यहाँ पर आप चाहे तो 1 सिफर लिखो, चाहे 2 सिफर लिखो, चाहे 3 सिफर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि हमको बच्चों को आदत लगाना है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिफर लिखने के बाद, ये वाला सिफर यहाँ लिखने के बाद इसके आगे 2 अदद है तो हमको 2 सिफर लगाना है, ताकि बच्चों की हैबिट उसी तरह से डेवलप हो। बाद में जब बच्चों को समझ में आएगा तो इनको 1 सिफर लगाने की हिदायत हम दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमको इस तरीके से चल रहा है। तो हम यहाँ फिर ये 3 सिफर लिख के जमा की अलामत लगा देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये 9 लिखेंगे इस तरीके से, उसके बाद एक ही अदद है, एक ही इंच है तो सिफर लगा देंगे, फिर जमा की अलामत लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 को ऐसे लिख देंगे। ये हो गया हमें अपना अगला जवाब। ठीक है, अब उसके बाद दिया है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 5 सिफर सिफर 5 बराबर, इस तरह से तीसरा सवाल दिया है। बराबर की अलामत लगाएंगे, सबसे पहले 5 लेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, उसके आगे 3 हिस्से है तो हम लिखेंगे सिफर सिफर फिर सिफर, उसके बाद फिर जमा की अलामत लगाएंगे, जमा की अलामत लगा के फिर हम यहाँ पे देखेंगे 1 सिफर है तो ये सिफर लगा देंगे। अब हमको मालूम है कि इसके आगे 2 अदद है यहाँ पर लिखे हुए तो हम 2 सिफर लगा देंगे और फिर जमा की अलामत लगाएंगे। फिर वापस क्या दिया है, 1 सिफर दिया तो फिर ये सिफर लगा देंगे, उसके आगे 1 अदद है तो हम यहाँ पे और 1 सिफर लगा देंगे, फिर जमा की अलामत लगाएंगे और फिर आखिर में बचा 5 तो 5 का 5 लिख देंगे। ये हो गया हमारा जवाब। अब ये 2 सिफर यहाँ लगाए हैं, ये 3 सिफर यहाँ लगाए हैं, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमने इसलिए किया ऐसा कि बच्चों को हैबिट रहे। ठीक है, वरना अगर हम यहाँ गुल कर देंगे, यहाँ हटा देंगे तो बच्चे जो है इसमें भी जो बीच में जो अदद दिए गए उसमें भी वो लोग कम ज्यादा कर सकते, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमको ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी हिदायत है, इसके बाद 2 सवाल और है जो हम आपको अपने आप से करने के लिए कहेंगे, हम नहीं करके बताएंगे। 2 सवाल आगे कौन से हैं, 5454, एक ये सवाल है, उसके बाद 5वां सवाल है 6666। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ये सवाल नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली हिदायत क्या है देखते हैं। अगली हिदायत है तौसी सूरत की मदद से अदद लिखिए, तौसी सूरत की मदद से अदद लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, तौसी सूरत में सवाल दिया हुआ है और हमको फीते की तरह जो सिमटाने वाला तरीका उस तरीके से करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, एक सवाल करूंगा तो आप कहेंगे कि भाई बाकी के सवाल हम खुद कर लेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको 2 सवाल तो करके बताऊंगा ही, बाकी आप अपने सवाल अपनी समझ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जवाब देखते हैं इसका क्या आएगा।
इसको अभी हमको तौसी सूरत की मदद से करना है। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, 4 दिया है, तो आप सिंपल 4 लिख दो, ये सिफर लिखने की जरूरत नहीं है इसको छोड़ देना। फिर क्या लिखा है, 5, तो 5 लिख दो, उसके बाद सिफर को छोड़ देना। फिर क्या लिखा है, 9, तो 9 को लिख दो, इसके सिफर को छोड़ देंगे, बाद में क्या बचा, 3, तो 3, ये हमारा जवाब है। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है आपको, एकदम सिंपल। दूसरा सवाल भी मैं आपको करके बता देता हूँ। दूसरा सवाल क्या दिया है, 6000 जमा, फिर क्या दिया है 80, फिर जमा, फिर क्या दिया है 4, अब उसके बाद बराबर की अलामत। अब हमको यहाँ पे जवाब लिखना है। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं क्या जवाब लिखूं, ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, ये 6000 लिखा है, 6 लिख दो आप, टेंशन मत लो, इस सिफर को छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या लिखा, 80 लिखा है, लेकिन 500 वाली रकम गायब है, सैकड़ों वाली रकम गायब है, तो हम लोग यहाँ पर एक सिफर लगा देंगे। आपको मैंने पहले बताया कि जो रकम गायब, दहाई गायब है तो सिफर लगा देने का, सैकड़ा गायब है तो सिफर लगा देने का, इकाई गायब है तो सिफर लगा देना, तो यहाँ पर एक सिफर लगा देंगे। उसके बाद क्या है 80, तो इसका लिखेंगे 8, उसके बाद क्या है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ देखना है, यहाँ पे 3 सिफर वाला नंबर है और 1 सिफर नंबर वाला है, 2 सिफर वाला गायब है। ठीक है, 1 हिंसी वाला रकम यहाँ पर दिया है, 2 हिंसी वाला यहाँ पे दिया हुआ है और 3 हिंसी वाला गायब है, तो 3 हिंसी वाला गायब है तो यहाँ पर सिफर लगा देंगे। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा सवाल लेंगे। तीसरा सवाल देखिए किस तरीके से है, 8000 है, 8000 जमा का जमा, उसके बाद 600 जमा का जमा, उसके बाद 2। अब यहाँ भी थोड़ा सा वैसे ही मसला है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसान है। ये 8000 में का 8 यहाँ पर लिख दो आप, और 3 सिफर भूल जाओ, उसके बाद 6 सैकड़ों का 6 लिख दो। अब यहाँ पर 1 सिफर वाला गायब है, यहाँ पर 1 सिफर वाला है, यहाँ पर 1 सिफर वाला है, लेकिन यहाँ पर 1 सिफर वाला यानी कि दहाई वाला गायब है, तो दहाई की जगह हम क्या कर देंगे, सिफर लिख देंगे और ये 2 का 2 लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम तीसरा और चौथा सवाल करेंगे और जो आगे जदवल दिया है उसको भी करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।